Geospatial technology करके एक करियर है Google Maps Correct. is a classic example of combination of geography with mathematics and technology. गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज का अकाउंटिंग मैनेज करना एक अलग जॉब है वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का. Can a person who does articleship do a government job and give his CA final after the articleship is complete? तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आर्टिकलशिप का कोई रिलेशन नहीं है. अपने स्किल्स पे फोकस करो, डेटा साइंस सीखो, पाइथन सीखो. बहुत सारी कंपनीज तुमको हायर करने के लिए तैयार हो जाएंगी बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स अ बिजनेस एनालिस्ट इन टुडेज टाइम. आप जब बीएससी फाइनेंस करते हैं तो आप एक क्लरिकल रोल में जाने की कोशिश करते हैं, पर जब आप एक बीएससी इकोनॉमिक्स करते हैं या इको ऑनर्स पढ़ते हैं तो आप मैनेजरियल रोल में जाने की कोशिश करते हैं. सारी दुनिया एक ही रैट रेस में है, पीसीएम. तुम इको और मैथ्स से हाईएस्ट पेड करियर्स इन द वर्ल्ड में जा सकते. सिर्फ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से तेरा करियर्स इन यूनाइटेड नेशंस. BBA in fintech and BBA in BSc in fintech. क्या करें? IIM बैंगलोर अब 4 साल की 2 डिग्रीज निकाल रहा है, BSc in economics and BSc in data science. Go and do your masters of sciences in financial engineering. Trust you me, you will be able to make a career in fintech. Today we are here with Mr. Abhishek Gupta, who's happened to be my best client in 2025, and I have learned a lot from you, sir. Thank you, sir. How to be active, how to be proactive in front of the camera, and how to speak impromptu. So I have some questions noted down from your comment section in the YouTube, and ये सब आप ही के चाहते बहुत ही चाहते सब्सक्राइबर्स के हैं. So let's start. पहला है शगुन चौहान का. Sir, I want to know about geography with mathematics. What are the best career options? Okay, so geospatial technology करके एक करियर है जो कि अगर उसका एक यूज केस बताऊं, Google is a classic example. Google Maps Correct. is a classic example of combination of geography with mathematics and technology. Yes. So geospatial technology जो कि Google Maps में यूज होती है, सैटेलाइट्स में यूज होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज होती है. It's a great career for the future. Nice. Second question comes from Ayan. Sir, please, ACCA versus CFA versus CPA का comparison बता दीजिए, बहुत confusion है. ACCA आपको एक ग्लोबल CA सर्टिफिकेशन देता है. Correct. 180 कंट्रीज में वैलिड है. CFA एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन है. बेसिकली आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन नहीं करोगे, आप अकाउंट्स को और बैलेंस शीट्स को समझ करके कंपनीज को डिसीजन लेने में हेल्प करोगे. CPA is basically for larger government sector organizations. आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं. बेसिकली आप पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए एक तरीके के CA हैं. Correct. बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज का अकाउंटिंग मैनेज करना एक अलग जॉब है वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज का. That's great. Next question is from Biswajit. Is business analytics and data analytics the same thing or there is a difference? हाँ, मतलब they are two different childs. I think two sides of the same coin. Two children of the same mother. Let me put it that way. The mother is mathematics, statistics, a little bit of Python. अब इसको आप जब करते हैं तो डेटा साइंस आता है, और डेटा साइंस को जब आप बिजनेस के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बिजनेस एनालिटिक्स बन जाता है, और आप उसको हेल्थ केयर या बायोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन जाता है. Great. So the next question थोड़ा सा funny है. Seeing all the memes that are coming up, ये बोला जा रहा है कि is Abhishek sir, are you coming up with these jokes or Avni ma'am is coming up with the jokes? Honestly, Ravi Khaitan is coming up with these jokes. So everybody who wants to become an influencer, who is a founder and wants to run a founder-led YouTube, Instagram channel, he is the guy from Varanasi. Just catch hold of him. Thank you, sir. ये मेरा self promotion के लिए था. Okay, next is, can a person who does articleship do a government job and give his CA final after the articleship is complete? Sorry, I could not understand the question. Can a person who is doing articleship can do a government job and फिर उसके बाद वो अपना CA final दे दे? Honestly, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप गवर्नमेंट जॉब कर पाओगे, और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे. और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आर्टिकलशिप का कोई रिलेशन नहीं है. हर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, कोई एग्जाम होता है, आप उसको क्लियर करो, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, आप टाइम निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो पढ़ने के लिए, ये आपका लुकआउट है. तो आर्टिकलशिप का गवर्नमेंट जॉब से कोई लेना देना नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम, यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब. Okay. Isha asked us this question: how to work as business analyst
after coming from the tier 2 or tier 3 MBA colleges? Okay, so very good question. Number one, ईशा, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के अपने चैलेंजेस होते हैं और मैं समझ सकता हूं, वहां पे डिग्री के ऊपर फोकस है, आपके पास एक पीस ऑफ पेपर तो है बट स्किल्स नहीं है. तो अगर आपको अपना करियर बिजनेस एनालिटिक्स में बनाना है आफ्टर डूइंग एन एमबीए फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज, तो सबसे पहले अपने स्किल्स पे फोकस करो. डेटा साइंस सीखो, पाइथन सीखो. देयर इज अ कोर्स ऑन coursera.org called Python for everyone. Start with that. And then there is a course on coursera.org पे ही which is called Python for data science. So ये दोनों कोर्सेज करो, अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज के साथ कंबाइन करो और खूब सारे प्रोजेक्ट्स करो, सेल्फ प्रोजेक्ट्स करो, लिंक्डइन पे डालो उसको. बहुत सारी कंपनीज तुमको हायर करने के लिए तैयार हो जाएंगी बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स अ बिजनेस एनालिस्ट इन टुडेज टाइम. Okay, next is Vivan is asking us which is a better option between bachelor's in finance and bachelor's in economics. Okay, I'll tell you personally, bachelor's in economics. डिस्क्लेमर भी दे देता हूं, मेरा बेटा है शिवांश, उसको मैं इको ऑनर्स पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रहा हूं. मुझे लगता है कि जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो गया उसको डिमांड सप्लाई का ज्ञान हो गया. लाइफ में एक बार डिमांड और सप्लाई का ज्ञान हो गया तो आपको सब चीज का ज्ञान हो गया, फाइनेंस का भी ज्ञान हो गया. आप जब बीएससी फाइनेंस करते हैं तो आप एक क्लरिकल रोल में जाने की कोशिश करते हैं, बट जब आप एक बीएससी इकोनॉमिक्स करते हैं या इको ऑनर्स पढ़ते हैं तो आप मैनेजरियल रोल में जाने की कोशिश करते हैं. सो हमने ना एक एग्जाम के ऊपर एक मीम डाला था, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए. मींस द एंटायर सब्सक्राइबर बेस हैज गॉन क्रेजी आस्किंग अबाउट. कुछ कमेंट्स वेर ग्रेट कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना भी एग्जाम्स लगाए, कितना भी कैसे मेरे दोस्त से नंबर कमाने मेरे दोस्त से ज्यादा आना चाहिए मेरे को. करेक, मेरे दोस्त को अच्छा, मेरे दोस्त से ज्यादा आना चाहिए. इसमें आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि वो दोस्ती ही क्या जो एक ऐसे मौके ना दे. देखिए, हाई स्कूल में मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत खुश होना चाहिए अगर आपके दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाए. नहीं भाई, थोड़ा सा डरना चाहिए, थोड़ा सा चिढ़ना चाहिए. दोस्ती में वो खटास, वो मिठास, दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो हाँ, कोशिश करो कि तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे से ज्यादा नंबर नहीं आए. ओके, सो अगेन एक एनोनिमस अकाउंट है, उसने ये पूछा है, आई वाज किक्ड फ्रॉम पीसीएम प्लस इकोनॉमिक्स टू ह्यूमैनिटीज प्लस मैथ्स. व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन? आई थिंक ही इज अ लकी गाय. पीसीएम तो सब पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया एक ही रैट रेस में है. पीसीएम, ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास इकोनॉमिक्स भी और साइकोलॉजी भी, और मैथ्स होने के बाद तुम इको और मैथ्स से हाईएस्ट पेड करियर्स इन द वर्ल्ड में जा सकते हो. एक्चुरियल साइंस, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इको और साइकोलॉजी से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, सिर्फ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से देयर आर करियर्स इन यूनाइटेड नेशंस. डरने की क्या बात है भाई? बहुत अच्छा है कि तू रैट रेस से निकल गया और ह्यूमैनिटीज की तरफ आ गया, बिकॉज लेट मी टेल यू, ह्यूमैनिटीज इज अ सीरियस प्रोफेशन एंड इट इज फॉर द फ्यूचर. ओके, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ये है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फिनटेक करियर्स एंड प्लीज सजेस्ट मी कि बीबीए इन फिनटेक एंड बीबीए इन बीएससी इन फिनटेक क्या करें. अभी बना देते हैं. Treat this video as the video for fintech career. Start with a BSc in financial analytics or start with a degree in data science with a minor in finance. बहुत सारे कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में जो ये डिग्रीज दे रहे हैं. यहां तक कि IIM बैंगलोर अब 4 साल की 2 डिग्रीज निकाल रहा है, BSc in economics and BSc in data science. सो आप या तो डेटा साइंस की डिग्री लेकर के फाइनेंस माइनर ले लो या आप बीएससी फाइनेंशियल एनालिटिक्स कर लो. उसके बाद गो एंड डू योर मास्टर्स ऑफ साइंसेस इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग. ट्रस्ट यू मी, यू विल बी एबल टू मेक अ करियर इन फिनटेक. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एक क्वेश्चन मेरा खुद का है कि हमारा आपको कैसे लगे, मतलब हाउ विल वी गेट टू नो कि शिवांश के साथ कब पॉडकास्ट करें, क्योंकि ये दुनिया पूछ रही है. मैंने आज शिवांश से बहुत कोशिश करी कि वो टाइम भी ब्लॉक था कि वो आ जाए पॉडकास्ट करने के लिए. बच्चा मेरा स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा थक गया था और उसके आवाज से समझ में आया पापा आज नहीं करने से चलेगा क्या. तो अभी शिवांश अपने बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा है. करेक्ट. वो दुनिया की सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिवर्सिटीज के लिए कोशिश कर रहा है. आप लोगों की सबकी दुआएं चाहिए कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, जा पाए. बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, उसके मम्मी ने, उसके पापा ने उसके साथ लग करके मेहनत करी है, और जिस दिन उसका एडमिशन हो गया, आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग हिम इन फ्रंट ऑफ यू फॉर अ पॉडकास्ट बिटवीन अ फादर एंड अ सन. सो सब्सक्राइबर्स, दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आप जितने कमेंट्स करोगे ना, वी आर गोइंग टू डू दिस एवरी मंथ, कि आपके कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसमें से बेस्ट कमेंट्स को सर खुद आंसर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग.
आप जितने भी वीडियोस पे कमेंट करोगे, मैं पर्सनली उसको चेक करूंगा एंड आई विल पिन डाउन एवरी कमेंट दैट यू आर डूइंग, एंड जो बेस्ट कमेंट होगा, अगेन कोई ऐसा वैसा कमेंट्स को मैं लेके नहीं आऊंगा, जो बेस्ट कमेंट्स होगा उसको ला करके विल डू दिस रैपिड फायर सेशन एवरी मंथ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मन की बात गुरु के साथ.